So very good evening all of you. Welcome to today's class. Normally answer writing class is not taken very seriously by students, and that is the reason why students do not understand the importance of an important class. Anyways, let's hopefully the realization will come. So in answer writing, now there are two things that I'll be discussing today: the basics of the answer writing, in terms of UPSC's requirement, what UPSC is looking at, and how do I start the answer writing. So if you want to start as a beginner, then what you should keep in mind. The second part is, of course, there are certain tail-ender words होते हैं इसमें, and these tail-ender words have to be understood. So there are two parts of the session today. The first part of the session would mainly focus on what is the requirement of the mains examination, why answer writing is important and pertinent to the, अगर आप answer writing अच्छा करते हो, so why this will make a real difference in your preparation. Now, normally, if you want to crack the mains examination, so to crack mains, there are three things I always tell the aspirant that you should be doing. The first is that you should develop thought process. To develop your thought process, that means thought process development, developing your thought and understanding. किसी भी topic में अपना एक thought process develop करिए. For example, any topic, if I say agriculture, industry, तो आपका basic thought होना चाहिए. If I say a word called development, you have to understand the idea of development. What is development? And thereby आपकी okay, sorry. My voice is not audible. Now it is audible, right? Okay, sorry for that. So there are two parts in the answer writing session. We'll be discussing two things. The first is the basics of answer writing. How do I start as a beginner? किन बातों का ध्यान रखना चाहिए if I really want to write a good answer, and why it is important to do answer writing practice since the beginning itself. Starting से ही क्यों उस पर focus करना चाहिए. And then there are some tail-ender words that we have to understand. ये tail-ender words क्या होते हैं उनको हम समझेंगे. For example, when you come across word called comment, evaluate, examine, describe, स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है अभी इन वर्ड्स का मतलब क्या है. So these are tail-ender words that we'll try to understand. आपको एक असाइनमेंट मिलेगा उसमें. I have given the tail-ender word also, और उसमें आपको कैसे लिखना है उस आंसर का सारा वो इंस्ट्रक्शन भी है. Now, so the first thing, if you want to crack mains examination, as I mentioned, there are three pillars. तीन पिलर्स आपको मेन से क्रैक करने के. फर्स्ट, यू शुड डेवलप योर थॉट प्रोसेस. किसी भी टॉपिक को पढ़िए, अंडरस्टैंड करिए, बी वेरी कॉन्सेप्चुअली साउंड. ओके, मोमेंट आई से डेवलपमेंट, कॉन्सेप्चुअली साउंड होना चाहिए, आपका बेसिक थॉट उसमें स्ट्रांग होना चाहिए. एंड हाउ विल दिस थॉट प्रोसेस गेट डेवलप? इसके लिए बेटा आपको रेगुलर पढ़ना पड़ेगा, एफर्ट करना होगा. रीड द टॉपिक मल्टीपल टाइम, रीड द सब्जेक्ट मल्टीपल टाइम, and you have to develop your own understanding in terms of language. आपको अपने शब्दों में लिखना आना चाहिए. So that is the first step. The second is developing, that is linguistic capability building. यानी आपको writing skill पे काम करना होगा. आपको लिखना पड़ेगा. You have to write, you have to practice, and you have to write. And third would be syllabi completion. आपका जब आपका basic thought develop हो जाएगा, complete the syllabus in a very structured manner. You know, you'll be surprised to know, UPSC के जर्नी में 5% लोग, maybe 3 to 5% लोग ही इसको कंप्लीट कर पाते हैं. Only 3 to 5% people actually are able to complete. And around, अगर हमारा selection ratio देखें, maybe 0.2 to 0.3 आपका selection
रेशियो होता है, और 3 to 5% भी तो मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, मुझे लगता है कि ये 2% होगा। तो एवरी एस्पिरेंट इज प्रिपेयरिंग प्रॉपरली, अगर उन्होंने इन चीजों पे काम किया तो सिलेक्शन इज वेरी हाई। तो कोई भी सिलेक्शन, आपका इंटरव्यू कॉल अगर आता है तो क्लोज टू 1% पीपल गेट इंटरव्यू कॉल, 0.4% पीपल गेट सिलेक्टेड। तो जिन लोगों ने इन प्रोसेस को कंप्लीट किया है, आउट ऑफ एवरी 3 to 3 पीपल, वन विल गॉट गेट द इंटरव्यू कॉल, every 1% will get selected, every 0.4% will get selected। इसमें और भी फैक्टर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल मेंस में आपका ऑप्शन का क्या स्टेटस है, इंटरव्यू आप कैसा परफॉर्म करते हो। कई बार ऐसा होता है दैट दिस इज गुड बट इंटरव्यू इज नॉट, यू हैव नॉट डन इन द इंटरव्यू। फॉर एग्जांपल इन माय लास्ट अटेम्प्ट मेरा इंटरव्यू खराब हो गया था, नहीं तो सर्विस चले जाते, मेंस पार्ट सही था, नंबर भी मेंस में सही आए थे, बट इंटरव्यू वेंट बिलो द थ्रेशोल्ड। तो यूपीएससी में लॉ ऑफ एवरेज वर्क करता है। इन एवरी ईयर यू हैव टू इन्वेस्ट अकॉर्डिंगली। तो आपको मेंस एग्जाम निकालना है नहीं निकालना, ये सवाल पहले अपने आप को पूछना होगा। एंड इफ यू रियली वांट टू क्रैक द मेंस एग्जामिनेशन, यू हैव टू इन्वेस्ट इन द प्रोसेस इन अ स्ट्रक्चर्ड मैनर। तो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ आंसर राइटिंग, बट लेट्स सी व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ यूपीएससी। इधर ध्यान दीजिए, उस पर भी आएंगे हम लोग। What is the purpose of the mains examination? Mains examination कहता है the idea is to check your intellectual traits and depth of understanding. यानी they are more concerned about your understanding, depth of your understanding and your traits, intellectual traits, rather than कितना information आपके पास है। For example, if I have to say analyze poverty, तो आप इसको कितना अच्छे से analyze कर पाते हो in terms of definition of poverty, how do you explain poverty, you are able to give examples of poverty, you are able to correlate things। तो ये means का requirement है। That means if you are able to write, develop these traits, you'll get, आपका means का जो पार्ट है वो सही हो जाएगा। Now coming to writing assessment test, अगर हम बात करते हैं, now people who are writing, जो लोग लिखते हैं UPSC examination, or for that matter every aspirant who is targeting the UPSC exam, तो राइटिंग असेसमेंट टेस्ट आप देखोगे हर मेजर कंपटीशन का एक इवैल्यूएशन पैरामीटर होता है। फॉर एग्जांपल इफ आई हैव टू टेल यू दैट व्हाई यूपीएससी वांट्स यू टू सी योर आंसर राइटिंग, इतने सारे लोग एग्जाम दे रहे हैं, प्रीलिम्स 15,000 लोग निकालते हैं, एंड आउट ऑफ दोस 15,000 पीपल जस्ट 2500 क्लियर द मेंस, सॉरी मेंस 2500 लोग की इंटरव्यू कॉल आती है। तो आउट ऑफ 15,000 पीपल who clear the prelims, only 2500 people clear the means, that means that number is 1:6। तो राइटिंग असेसमेंट टेस्ट में वो क्या देख रहे हैं, बिकॉज व्हेन यू टॉक अबाउट प्रीलिम्स, तो प्रीलिम्स क्या है, प्रीलिम्स इज, इफ यू वांट टू क्रैक प्रीलिम्स, तो प्रीलिम्स के दो चीजें हैं, प्रीलिम्स इज नॉलेज, दैट मींस बाय द टाइम यू क्रैक द प्रीलिम्स यू हैव इनफ नॉलेज, आपके पास ज्ञान आ जाता है, भंडार आ जाता है, बिकॉज क्रैकिंग प्रीलिम्स इटसेल्फ विल रिक्वायर लॉट ऑफ एफर्ट, बट प्रीलिम्स इज आल्सो अबाउट एप्लीकेशन ऑफ दिस नॉलेज, आपको अप्लाई करना आना चाहिए। तो यूपीएससी का जो प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन होता है, ऑल द एस्पिरेंट हु आर टारगेटिंग, तो आपको इस पे ध्यान देना होगा। दैट मींस बाय द टाइम यू गो फॉर द मेंस एग्जामिनेशन, तो मेंस एग्जाम के नॉलेज आपके पास इनफ होता है इन टर्म्स ऑफ कंटेंट, इंफॉर्मेशन, okay, basic thought process, okay, that means you are, if you're targeting mains, आपका knowledge develop हो जाता है, but the only thing that is lacking is your skill to communicate, आपको लिखना आना चाहिए, and this is one area where majority people lack। पढ़ना आसान काम है, किताब उठाया पढ़ लिया, मटेरियल उठाया पढ़ लिया, नोट्स उठाया पढ़ लिया, अपने आप को एक फीलिंग दिया कि पढ़ लिया, समझ में आ गया ना। हाउ डू वी जज दैट जो आपने पढ़ा है वो रेलेवेंट है, हाउ डू वी जज दैट जो आपने पढ़ा है उसमें आप एग्जाम में रेलेवेंट लिख पाते हो, बिकॉज यू हैव एन अंडरस्टैंडिंग, मुझे टॉपिक समझ में आ गया, यू आर हैप्पी, यू आर गुड फ्रॉम इनसाइड, आपने एक टिक मार्क कर दिया, सिलेबस कंप्लीट, इस सब्जेक्ट का मेरा टॉपिक कंप्लीट है, आप खुश हो गए अंदर से, मेरा सब्जेक्ट तो कंप्लीट हो गया। बट द रियल टेस्ट इज व्हेन वी वांट टू एनालाइज, अब एमसीक्यू निकल रहा है तो मतलब प्रीलिम्स तैयार है। अगर एमसीक्यू में आपका 50% एक्यूरेसी ज्यादा है, यानी 50% का क्रॉस कर रहे हो, that means cutoff is around 50%. If you are touching near 50%, more than 50%, you are clearing the prelims. But if you are mains अगर आप टारगेट कर रहे हैं, तो मेंस में इन सब चीजों पे हम लोग चेक करेंगे। Can you write 200 words? Can you write 250 words?
क्या आप 7 मिनट में अपने आंसर को लिख पाते हो? क्या 7 मिनट में सारा एनालिसिस करना, प्लान करना, स्ट्रक्चर करना, लिखना, कम्युनिकेट करना, एवरीथिंग हैज टू बी डन इन अ मैटर ऑफ 7-8 मिनट्स. Now that will require a lot of practice, lot of effort, lot of improvisation, and lot of testing in real time situation. कई बच्चे मुझे एक आंसर लेके आते हैं, कहते हैं सर मेरा आंसर देखिए. Now मैं when I look at the answer, I ask certain things. How much time did you take to write the answer? When you're writing the answer, did you revise your notes before writing the answer? जब ये सवाल का जवाब मैं पूछता हूँ, तब मैं जज कर पाता हूँ whether they are. वो कहते हैं सर आधा घंटा लगा लिखने में. ना आधा घंटा में आपने फूल पत्तियां बना दी उसमें आंसर्स में. It does not matter much because you have not written in the constrained manner. So it is very important that we are able to understand. So mains is about understanding your thought process. आपकी thinking कैसी है, analytical है नहीं है, on the spot, bang on. Do you are clear about in terms of concept? आप कितना easily explain कर पाते हैं. A lot of people come across उनको अंग्रेजी बहुत अच्छी आती है. No, not that is not how judge. We are able to judge how well you are able to communicate. कितना easy शब्दों में अपनी बातों को कह पाते हैं. एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज प्रीलिम्स का पार्ट है जो यू कैन अप्लाई इट. कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस लाना. कोई सवाल पूछा जा रहा है, एनी क्वेश्चन दैट इज आस्क्ड इन यूपीएससी एग्जामिनेशन, यू शुड बी एबल टू रिलेट टू द कंटेम्प्रेरी. करंट से लिंक करना आना चाहिए. इट इज नॉट इंपॉर्टेंट दैट एवरीथिंग विल लिंक विद करंट, बट मोस्ट ऑफ द थिंग्स विल बी लिंक विद करंट. ज्यादातर चीजों को करंट से आप लिंक कर सकते हैं बिकॉज देयर इज अ रीजन व्हाई द क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड. अगर वो रीजन नहीं है तो नॉर्मली वो क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा. यस, देयर आर सम बेसिक क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड. आप हिस्ट्री में पूछ रहे हैं तो कोई जरूरी नहीं है कि वहां उसका रेलेवेंस आज के पर्सपेक्टिव में है. ओके, देन योर डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, योर टाइम मैनेजमेंट, योर प्रेजेंस ऑफ माइंड, रिकॉल फैक्टर, एक्टिव लर्निंग. आप लर्निंग करते हो, हाउ डू वी नो दैट यू आर लर्निंग एक्टिवली? आपका रिकॉल फैक्टर बहुत जरूरी है. आपने एक आर्टिकल पढ़ा, न्यूज़पेपर पढ़ा, एंड यू क्लोज योर आईज, आस्क्ड ओके कैन आई समराइज दिस आर्टिकल इन 5 पॉइंट 1 2 3 4 5. सो वो आपका एक्टिव रिकॉल होता है. Now active recall has to be there. हो सकता है नॉलेज बहुत है, इंफॉर्मेशन बहुत है, बट यू नॉट एबल टू राइट इन 7-8 मिनट्स का विंडो. तो ये एस्पिरेंट समझता नहीं है. लिखना आसान काम नहीं है, इट्स अ टफ वर्क एंड इट इज समथिंग दैट वी हैव नॉट लर्नड. हमने अपने स्कूल में, कॉलेज में सीखा नहीं, इसको कहीं सिखाया नहीं जाता है. क्रिएटिव राइटिंग, क्रिटिकल राइटिंग, ब्लॉग्स लिखना, कुछ लिखना इज वेरी रेयर थिंग एज अ स्किल आल्सो. तो दीज आर द प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलता है. नाउ इमेजिन कोई भी यूपीएससी जो आंसर आप लिख रहे हो, यूपीएससी के जो एग्जामिनर्स होते हैं वो आपको जानते नहीं है, दे डोंट नो यू. द ओनली थिंग दैट दे हैव इन फ्रंट ऑफ यू इज देयर पेपर. आप उनका पेपर अपने सामने रख रहे हो. द सेकंड थिंग इज दैट जो आप पेपर में लिख रहे हो, बाय दैट दे विल जज यू. आपका कंटेंट हो गया, क्वेश्चन के आप क्वेश्चन को समझे हो कि नहीं समझे हो, कंटेंट हो गया आपका. हाउ डू यू स्ट्रक्चर योर आंसर? मैंने बहुत अच्छा खाना बनाया आपको और आपके सामने सब मिला के हलवा बना के रख दिया. यू माइट फील दैट अरे पता नहीं कैसा है, नहीं खाएंगे. बट मैंने एक नॉर्मल खाना बनाया और उसको बहुत अच्छे से सजा दिया उसको एंड कीप इट इन फ्रंट ऑफ यू. यू बिफोर इवन ईटिंग यू विल फील दैट इट इज लुकिंग वेरी गुड. खाने के बाद वो ब्लैंड होगा, सिंपल होगा, इट्स ओके. तो प्रेजेंटेशन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट मेनी टाइम्स. तो आपका कंटेंट जरूरी बट स्ट्रक्चर भी है कि क्या कंटेंट लिख रहे हो, कैसे लिख रहे हो. स्पीड, कैन यू राइट इन 7 मिनट्स, 8 मिनट्स? आपको 150 वर्ड का आंसर 7 मिनट्स में लिखना है. इफ यू वांट टू राइट 250 वर्ड आंसर, यू हैव टू राइट इन 10 मिनट्स. As a student, I expect that you should be able to write 300 words per 10 minutes. यानी 30 वर्ड पर मिनट की प्रैक्टिस हमें करनी है. That is the upper threshold. उससे ऊपर नहीं जा सकते हैं बिकॉज जो आपको लिखना होगा इन टाइम बाउंड मैनर लिखना होगा. देन इनोवेशन, आर यू इनोवेटिव? इन्होंने एक किताब उठाई, इन्होंने भी उस टॉपिक को यहीं से पढ़ा, आपने भी पढ़ा, आपने भी पढ़ा, आपने भी पढ़ा. Every person has read the topic from the same book. Now how do I put my content differently? Innovation कैसे लाएं? That is something that has to be invested. Practice करना है आपको, analyze करना है, practice करना है. Now all these things will decide the outcome. ठीक है, तो अब आते हैं एक एक करके. पहला सवाल, मेरे सामने क्वेश्चन आ गया, what is the first thing I should do? मेरे सामने क्वेश्चन आ गया, what I should write at the first level. पहली बार है, जैसे आपके सामने क्वेश्चन आता है, the first thing you should do is try to understand the question. क्वेश्चन पूछ क्या रहा है? So the first thing is try to understand in a very simple कि क्वेश्चन क्या रह रहा है. Then if you look at the question, let's say कोई भी क्वेश्चन ले लेते हैं.
Okay, the question is development is key to future of India. Development is key to future of India. Analyze in terms of potential to achieve 5 trillion economy by 2026. अगले 2 साल के अंदर इंडियन इकोनॉमी विल बिकम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी. हमारी इकोनॉमी अभी 4 ट्रिलियन के आसपास है. अगले 2 साल के अंदर वी आर एक्सपेक्टिंग दैट इकोनॉमी विल ग्रो बाय 5 ट्रिलियन, यानी 2026 के एंड तक. तो बट डेवलपमेंट इज की, यानी इसमें डेवलपमेंट लेके आना होगा, देन दिस विल बी देयर. तो आपको डेवलपमेंट नाउ इस क्वेश्चन को कैसे लिखना है, यू हैव टू एक्सप्लेन द कांसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट इन इंडियाज कॉन्टेक्स्ट टू हेल्प यू अचीव इंडिया इन 5 ट्रिलियन इकोनॉमी. कि कैसे हम डेवलपमेंट अचीव करें. तो व्हाट इज डेवलपमेंट, कांसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट. तो जब आप यूपीएससी के आंसर लिखोगे तो इसमें फर्स्ट थिंग क्या करोगे, फर्स्ट थिंग दैट यू विल डू, आप कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करो. आइडेंटिफाई कीवर्ड्स. इसमें क्या कीवर्ड्स हैं, कीवर्ड्स मतलब वो वर्ड्स जो आंसर को डिफाइन कर रहे हैं, क्वेश्चन को डिफाइन कर रहे हैं, जिसके अराउंड लिखना है. तो पहला होगा, ये पहला कीवर्ड होगा, एम आई राइट. ठीक है. देन 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, ये दूसरा कीवर्ड होगा. ओके. देन फ्यूचर ऑफ इंडिया यानी डेवलपमेंट, ये तीसरा कीवर्ड होगा. यानी डेवलपमेंट, फ्यूचर ऑफ इंडिया, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, इन तीनों को इंटरलिंक करना है. आपको क्या, हाउ डू आई स्टार्ट माय आंसर, पहला शब्द क्या लिखोगे, दैट इज द क्वेश्चन आई शुड बी आस्किंग. मुझे कॉन्सेप्ट, डू आई अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, लेट्स से यस. हाउ डू आई अचीव 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, बिकॉज वो फ्यूचर ऑफ इंडिया से लिंक्ड है. तो हियर व्हाट यू डू, कि जैसे ही आप स्टार्ट करो तो आपको ब्रेक डाउन द क्वेश्चन स्मॉल पार्ट, आइडेंटिफाई कीवर्ड्स. क्वेश्चन को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दो. डेवलपमेंट, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, फ्यूचर ऑफ इंडिया, तीनों को इंटरलिंक करना है. फिर पहला लाइन, पहला सेंटेंस कैसे लिखोगे, हाउ डू आई राइट द फर्स्ट लाइन, इंट्रोडक्शन. तो स्टार्ट कैसे करते हो, तो किसी भी आंसर का एक स्ट्रक्चर होता है. एनी आंसर विल हैव अ स्ट्रक्चर. तो स्ट्रक्चर मींस पहला होगा इंट्रोडक्शन, यू इंट्रोड्यूस द आंसर. देन सेकंड इज योर बॉडी एंड थर्ड इज योर कंक्लूजन. तो इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन. अब जो आपका इंट्रोडक्शन है वो क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए. व्हेन यू राइटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, जब आप पहली बार लिख रहे हो तो आपको हमेशा इंट्रोडक्शन पे काम करना होगा. नॉर्मली एज एन एस्पिरेंट आपने कभी इंट्रोडक्शन लिखा नहीं है, आपको पहला लाइन क्या होगा नहीं पता है. सो व्हेन आई राइटिंग आंसर ऑफ द फर्स्ट टाइम, मैं पहला काम क्या करूंगा, दैट हाउ डू आई स्टार्ट माय फर्स्ट इंट्रोडक्शन. कुछ भी आप कीवर्ड्स को आपने डिफाइन कर लिया. नाउ व्हाट आर द कीवर्ड्स हियर. हमारा कीवर्ड है डेवलपमेंट. डेवलपमेंट इज माय कीवर्ड. दूसरा है आई हैव द फ्यूचर ऑफ इंडिया एंड थर्ड इज 5 ट्रिलियन इकोनॉमी. दीज आर 3 कीवर्ड्स आई हैव. अब मुझे क्या करना होगा, आई कैन स्टार्ट विद द डेफिनेशन अप्रोच. मैं डेवलपमेंट को डिफाइन कर दूं. आई डिफाइन डेवलपमेंट. डेवलपमेंट इज पॉजिटिव चेंज. डेवलपमेंट इज enlargement of people's choices. Development is maybe attaining the goals of goals of maybe our planners of India. उसको, या फिर आप डेवलपमेंट को फैक्ट से स्टार्ट करो. कोई डेटा फैक्ट दिया आपने, आपने कोई एग्जांपल दिया, इन द लास्ट 10 years India has grown by 8% and India has been able to remove maybe 25 crore people out, above poverty line. That is example of development. तो आप उसको वो समझा सकते हो. देन, या फिर आपने कोई कोर्स से स्टार्ट कर दिया. तो एज एन एस्पिरेंट जब आप ये सारी एफर्ट करोगे, यू हैव टू मेक एन एक्स्ट्रा एफर्ट टू अचीव दैट, बिकॉज बुक्स में ये सारी चीजें दी नहीं है. एज अ स्टूडेंट वी एक्सपेक्ट यू टू मेक एन एफर्ट, बट इट इज जस्ट स्टार्टिंग. स्टार्टिंग में अगर आपने 10-20 दिन, 1 महीना इस पे काम कर लिया, देन इट विल बिकम, यू विल बिकम अ प्रो इन आंसर राइटिंग. यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड. इनफैक्ट व्हेन यू स्टार्ट राइटिंग, तो आपका पढ़ना भी इंप्रूव हो जाता है. बिकॉज अभी आप रैंडमली पढ़ रहे हो. टुडे यू आर स्टडिंग. जब आप पढ़ रहे हो अभी, तो आप सिर्फ मटेरियल उठाया, पढ़ लिया. नाउ हाउ डू आई नो दैट व्हाटएवर यू आर स्टडिंग इज रेलेवेंट. तो आपने टेस्ट दे दिया, तो टेस्ट में नंबर आया तो मालूम हो गया कि आप रेलेवेंट हो कि नहीं हो. नेक्स्ट थिंग इज दैट आपको लिखना आता है कि नहीं आता है, बिकॉज यूपीएससी विल जज यू बेस्ड ऑन व्हाट यू राइट. नाउ यूपीएससी में आपको कितना लिखना है, यू हैव टू राइट 4000 words in 3 hours. Ideal situation क्या होगा, that you have to write 25 words per minute. ये आपका आइडियल सिचुएशन है. I have to achieve this because 4000 words 3 hours में होगा, that means 180 minutes है आपका. Normally in 4000 word में आप 20 questions लिखते हो. And if I have to say that
20 क्वेश्चंस 180 मिनट्स, तो 1 क्वेश्चन कितना हो गया 9 मिनट, बट ये 200 वर्ड्स के लिए है। यूपीएससी में जो आपके आंसर्स होते हैं दे आर ईदर 150 वर्ड्स और 250 वर्ड्स। तो यहाँ पे आई वुड से अ विंडो ऑफ 7 मिनट्स, और यहाँ पे जो विंडो होगा वो 10 मिनट्स का होगा। सो आई हैव टू राइट 150 वर्ड्स इन 7 मिनट्स या 7.5 मिनट और 250 वर्ड्स इन 10 मिनट। ये सुनने में आसान लग रहा है, करने में बहुत ही मुश्किल है। दैट इज द फर्स्ट स्टेप। द सेकंड इज यू हैव टू राइट 20 क्वेश्चन एट अ स्ट्रेच। आपको 3 घंटे लगातार लिखने हैं। इट इज लाइक अ मैराथन। देन आपको 3 घंटे का ब्रेक मिलेगा, फिर एक और पेपर लिखना है अगेन फॉर 3 आवर्स एट अ स्ट्रेच। 9 to 12 नहीं 2 घंटे का, 9 to 12 and 2 to 5। सो यू हैव टू राइट 6 आवर्स। तो उसको प्रैक्टिस करनी है। तो आप इमेजिन करो, इतना आसान नहीं है। And whatever you write in the examination, normally questions are not direct, they are conceptual and analytical होते हैं। You have to interlink things, current based होते हैं। तो आपका जो अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए वो अच्छा होना चाहिए। आपके पॉइंटर्स टिप्स पे टिप पे होने चाहिए। The better you are, the better you'll be able to do that. So it is imperative on your part to understand these things. ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज मैंने भी मेंस का एग्जाम लिखा है। I have written 3 मेंस, और विश्वास मानिए अगर आंसर राइटिंग अच्छी होती या एक थ्रेशोल्ड के ऊपर होती तभी आपका मेंस निकलेगा। आई गेव 2 इंटरव्यूज। पहले अटेम्प्ट में मैंने इंटरव्यू दिया, मेरी आंसर राइटिंग अच्छी थी फ्रॉम स्टार्टिंग बिकॉज आई इन्वेस्टेड ऑलमोस्ट 1.5 ईयर इन द आंसर राइटिंग। तो आपका जो एवरी प्रिपरेशन में एफर्ट है, पहले अपने आप से पूछिए आर यू अ सीरियस कैंडिडेट, आई रियली वांट टू क्रैक द एग्जाम एंड आई यू रियली रेडी टू पुट इन रियल एफर्ट, बिकॉज आंसर राइटिंग इज अ रियल एफर्ट। इट इज आउटसाइड द कंफर्ट जोन। आंसर राइटिंग आदमी तब करता है जब तैयारी हो जाती है। अच्छा आप क्या करना है, अच्छा लिखना नहीं आता, चलो आंसर राइटिंग का कोई मॉड्यूल ज्वाइन कर लेते हैं। अरे भाई यही कर लो ना, हम करवा तो रहे हैं। यहाँ के बाद अब कुछ नहीं करना है, सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। So these are things that have to be understood and this will come with lot of practice. आंसर राइटिंग में मिनिमम 6 से 9 महीने का प्रैक्टिस चाहिए आपको। एंड आई एक्सपेक्ट 1 hour पर वीक, 1 घंटा हर वीक चाहिए मुझे। पॉसिबल है 1 week, 1 hour पर वीक इज नॉट मोर। बाद में इसको 1.5 घंटे 2 घंटे कर लीजिएगा व्हेन एग्जाम नजदीक आ जाएगा। तो कहने का मतलब दैट इज द रिक्वायरमेंट। पूरे हफ्ते में कितने घंटे होते हैं? 168। अच्छा 168 आवर्स में हम लोग, अगर हम एक सीरियस एस्पिरेंट है तो कितने घंटे पढ़ाई करते होंगे? 8 आवर्स पर डे मान लेते हैं, आइडियल होगा। 8 into 7 इज हाउ मच? 56 आवर्स आप पढ़ रहे हो। इस 56 आवर्स में मैंने क्या कहा, 1 घंटा लिखने पे दो, 1.5 आवर। जिस दिन फिल्म निकलेगा यू विल थैंक मी, सर मीन्स आपकी वजह से निकला। मैंने कहा मेरी वजह से नहीं, तुम्हारी वजह से निकला है, बिकॉज यू लिसन टू द गाइडलाइन एंड यू मेड एन एफर्ट देयर। सुनने में आसान लगता है। राइटिंग इज वन एरिया वेयर नॉर्मली पीपल, अब लिखना कैसे है, क्या लिखना है, किस तरह लिखना है, वो अगला सवाल है। पहली बात तो लिखना है। द मोर यू राइट द बेटर यू गेट, एंड दीज थिंग्स यू लर्न बाय राइटिंग, यू लर्न बाय डूइंग। ये प्रिपरेशन का बेसिक रूल है, क्योंकि लिखना आता नहीं है तो लिखोगे तो सीखोगे। द मोर यू राइट द बेटर यू गेट विद टाइम। एक आइडियल सिचुएशन क्या है? वेल आई से यू शुड राइट एटलीस्ट 500 आंसर। आपको इतने आंसर लिखने चाहिए, इससे नीचे नहीं मत लिखिए अगर सिलेक्शन पाना है तो। देन एटलीस्ट 15-20 essays आपको लिखने होंगे। If you're able to write 500 answers by the time you go for the mains examination, आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी, आपके सिलेक्शन के चांस बढ़ जाएंगे टोटल। बिकॉज एनीवे आप पेपर में आप 100 क्वेश्चन लिखोगे, 4 GS के पेपर्स है। तो अगर मॉक में फाइनल डे हमें लिखना है 100, 4 GS पेपर्स, 4 into 20 is 80, बट ऑप्शनल हो जाते हैं, मान लो 120 हो जाता है, तो हम उसका एटलीस्ट 4 to 5 टाइम्स से प्रैक्टिस करेंगे ना मिनिमम। फिर एक ऐसे 2 ऐसे लिखना है तो वहां भी हम एटलीस्ट 15 ऐसे लिखेंगे, तो 2 ऐसे है, दैट मींस 10 to 15 ऐसे, 20 ऐसे लिख लीजिए। ऐसे में प्रैक्टिस से ज्यादा कह रहा हूँ बिकॉज ऐसे इज अ फुल पेपर। ऐसे अपने आप में एक पेपर है। कि आप इफ यू आर मेकिंग एन एफर्ट और आपने हिस्ट्री पढ़ा
मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ने में आपको 50-60 घंटे क्लास में लग गए, आपने 50 घंटे सेल्फ स्टडी किया, 100 घंटे पढ़ा, उसके बाद आपने क्वेश्चन लगाए, मान लो 200-300 क्वेश्चन लगाए, मे भी आपने 5 घंटा और पढ़ा, फिर उसका 10 घंटा एनालिसिस किया, तो मे भी 120 घंटा 40 मतलब 140 to 150 आवर से आपने मॉडर्न हिस्ट्री पे दे दिया। आप ऐसे में 50 घंटा भी नहीं देते हो, लिख लेंगे कुछ, अरे भाई कुछ क्यों लिखोगे, एग्जाम निकालना है ना। इट इज अ सीरियस वर्क दैट रिक्वायर्स प्रैक्टिस एंड एफर्ट। तो इफ यू आर एबल टू, जितनी जल्दी इस बात को समझ जाएंगे उतना अच्छा है, नहीं समझेंगे तो कोई बात नहीं, राइट। अब आज देखिए ना, आज की क्लास में आइडली इन माई क्लास 30+ स्टूडेंट होने चाहिए, बट बोले आंसर राइटिंग क्लास है, कुछ पढ़ने को तो मिलेगा नहीं, कुछ सीखने को तो मिलेगा, क्योंकि आपको लगता है कि नोट्स बनाया तो क्लास हुई, नोट्स नहीं बनाया तो क्लास नहीं हुई। तो एंड आंसर राइटिंग कर लेंगे, एंड बिलीव मी people are not serious about answer writing. That means the day you develop your answer writing, आप इंडिया के 95% क्राउड से आगे निकल गए, यानी आपने 100 में से 95 लोगों को पीछे छोड़ दिया। अब ये बात अगर समझ में आए तो अच्छी बात है, और नहीं समझे तो कोई बात नहीं। एंड द डे यू क्लियर द प्रीलिम्स और आपकी मेंस की तैयारी है, आंसर राइटिंग किया है आपने, योर चांस ऑफ सिलेक्शन इज ऑलमोस्ट 50%, ऑलमोस्ट 50%। हर 2 में से 1 बच्चा सेलेक्ट होगा, बशर्ते इंटरव्यू भी ठीक हो जाए, आप नॉर्मली वो फेस को निकाल पाए, कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी आपके साथ नेगेटिव ना हो, ऐसा भी होता है कभी कभी। मेनी टाइम्स प्रिपरेशन इज आल्सो अबाउट डेस्टिनी, खैर वो सेकेंडरी होता है, प्राइमरी होता है आपका एफर्ट एंड द आउटकम जो उससे आता है। समझ में आ रही मेरी बातें? डू आई मेक सेंस? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, हेतवी, इशिका, अभिनव, जानवी, वर्षा, डू आई मेक सेंस? चलो गुड। नाउ तो स्टार्ट कैसे करना है, लिखना कैसे, कुछ भी नहीं, एक जो आंसर में जो कीवर्ड है उठाइए, उसको डिफाइन कर दीजिए इन ओन लैंग्वेज। दैट मीन्स आपका थॉट प्रोसेस डेवलप होना चाहिए। व्हेनेवर यू रीड अ टॉपिक, रीड इट मल्टीपल टाइम, रिवाइज इट मल्टीपल टाइम एंड आस्क योरसेल्फ कि कैन आई राइट इन माय ओन लैंग्वेज और नॉट, मैं अपने शब्दों में लिख पाऊंगी या लिख पाऊंगा कि नहीं, एंड इफ आंसर इज यस देन, और नहीं लिख पाएंगे तो प्रैक्टिस करेंगे। ओके, सो दैट इज इट। ये पहला आपका जो अप्रोच है, जो आप तैयार कर सकते हो, लिखना स्टार्ट करो, जो क्वेश्चन से कीवर्ड उठाओ और उसको डिफाइन कर दो, ठीक है। उसके बाद जैसे मान लो एक क्वेश्चन है, डिस्कस द कांसेप्ट ऑफ पॉवर्टी इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। पॉवर्टी इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, मुझे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस करना है, तो यहाँ पे कीवर्ड क्या हो गया, पॉवर्टी, इंडियन कॉन्टेक्स्ट एंड सजेस्ट सुटेबल एलिवेशन मेजर्स। तो क्वेश्चन में 3 चीजें बतानी है, यू हैव टू एक्सप्लेन कांसेप्ट ऑफ पॉवर्टी, फिर उसको इंडियन कॉन्टेक्स्ट से लिंक करना है, और पॉवर्टी ओवरकम कैसे करना है उसको आपके तरीके बताने हैं। तो पॉवर्टी इज अ स्टेट वेयर पीपल आर अनेबल टू मीट देयर बेसिक नीड्स फॉर सस्टेनेंस। It could be food, non-food, etc. Blah blah blah. As per the recent data, Indian poverty has the data of Indian poverty as per X report is this, as per Y report is this. India has been able to overcome poverty since 1990. India की जो poverty है वो more than half कम हो चुकी है. Then you give the supporting argument data. Poverty in Indian context is more about India में problems क्या है, poverty में lack of income है, malnutrition है, lack of real opportunities है, lack of good remuneration है, helplessness है, powerlessness है. Also Indian poverty is very specific because Indian poverty is also based on societal factors are there. People who are socially जो है backward है, वो poor ज़्यादा हैं आपके. That means economic factor के साथ social factor भी इंडिया में बहुत important है. Economic factor is less, lack of income, but social factor is जहाँ पे society में आपको मौका नहीं मिला है, and that is why your income is less. Especially SC, ST, OBC, you know, maybe women, they have not got an opportunity. तो इनमें इनकी poverty ज़्यादा होगी संभावना. So there are social factors, economic factors. Then you have to understand, give elevation measure. आपको poverty बताना होगा इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, कैसे ओवरकम करेंगे, कैसे ओवरकम करेंगे बताइए. Forget books, notes, material. आपको गरीबी, आपको कहा हाँ भाई तुम IAS बन के बैठो यहाँ पे, तुम्हारे प्रदेश में बहुत गरीबी है, आप 5 पॉइंट बताओ कि हमें करना क्या चाहिए ताकि गरीबी कम हो जाए. तो व्हाट वुड बी योर आंसर, बताइए, सोच के बताइए. ओके,
ठीक है, तो आपने कहा कि पॉवर्टी एलिवेशन मेजर के 5 पिलर, पहला है एजुकेशन, ठीक है, हेल्थ, और प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, और ओके इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स। इसको हम और अच्छे से लिख लेते हैं। तो if I have to say about poverty elimination strategy, तो पहला जो आप कहोगे दैट इज, आपने कहा इम्प्रूवमेंट ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटी, एम आई राइट? और बताइए आपने क्या बताया था? सेकेंड इज एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, यानी नौकरियां जनरेट करिए, और ओके इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स, एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स। और क्या हो सकता है? ठीक है, एक्सेस टू क्रेडिट, इंक्लूसिव एजुकेशन, इसको बोलेंगे फाइनेंशियल, वित्तीय समावेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन, एक्सेस टू बैंक, एक्सेस टू क्रेडिट फैसिलिटी टू कॉमन पीपल। और क्या हो सकता है? अच्छा, रीडिस्ट्रीब्यूशन लैंड, लैंड रिफॉर्म करना मतलब। अच्छा, ठीक है, वैसे तो ये कहानी पुरानी हो चुकी है, बिकॉज अब लैंड तो बचा ही नहीं रिफॉर्म करने के लिए। इंडिया में लैंड तो रह ही नहीं गया है, तो डिवाइड हो गया बहुत ज्यादा। बट ठीक है, लैंड रिफॉर्म कह सकते हैं, बट आई नीड मैक्रो पॉइंटर्स। इसके अलावा और भी हो सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करो। इंफ्रास्ट्रक्चर दो चीजों पे आएगा, एक तो फिजिकल, रोड, हाईवे, पोर्ट, इरिगेशन, दूसरा होगा सोशल, जो इससे जुड़ा हुआ है। एजुकेशन कैसे इंप्रूव करोगे? नीड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। एजुकेशन का आउटकम कैसे इंप्रूव करोगे? बड़ा स्कूल्स बढ़ाएंगे। हेल्थ कैसे इंप्रूव करोगे? सोशल, यानी हेल्थ फैसिलिटीज इंप्रूव करेंगे, हेल्थ प्रोफेशनल्स को लेके आएंगे, बहुत सारी चीजें करेंगे। ठीक है, आप कह सकते हो कि रूरल लेड डेवलपमेंट मॉडल हो, या रूरल लेवल फोकस हो, जहां पर हम एग्रीकल्चर को फोकस करेंगे, बिकॉज इंडिया के 50% लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है। आपने आंसर दे दिया, सब आंसर यही है। अब एम्प्लॉयमेंट जनरेशन वेज बेस्ड हो सकता है या स्किल बेस्ड हो सकता है। स्किल दे देते हैं, नौकरी अच्छी मिल जाएगी, वेज दे देते हैं, मनरेगा कर देते हैं। गवर्नमेंट की स्कीम भी बहुत तरह की होती है। एक गवर्नमेंट स्कीम होती है जो गवर्नमेंट बेसिक कम्युनिटी प्रोवाइड करती है, हर घर जल, है ना, सिलेंडर दे दिया आपको, सौभाग्य हर घर बिजली योजना, है ना, पीएम उज्ज्वला स्कीम, हर घर जल यानी हर घर में पानी दे दिया, तो बेसिक कम्युनिटी से एक्सेस दे दिया आपको। दूसरा हो गया, हमने अब एक्सेस तो मिल गया, अब गाड़ी तो ठीक चल रही है, फ्री राशन दे दिया या सस्ता राशन दे दिया, पीडीएस सिस्टम हो गया, तो बेसिक कम्युनिटीज हो गया। नाउ आपने कहा ठीक है, पेट भर गया, नल मिल गया, सिलेंडर मिल गया, अब नौकरी दो, अब कुछ ऐसा दो ताकि हम कुछ करें, तो देन यू फोकस ऑन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। ठीक है, तो कहने का मतलब इस तरह से हम बता सकते हैं, यू कैन गिव एग्जांपल्स एंड फैक्ट्स। अब ये है कि ये कितना अच्छा कम टाइम में इफेक्टिवली आप लिख पाते हो, दैट विल डिसाइड द आउटकम ऑफ द आंसर, एम आई राइट? और ये आएगा प्रैक्टिस और रिविजन से। द मोर यू प्रैक्टिस, द मोर यू रिवाइज, बेटर इट गेट्स। तो कोई भी एस्पिरेंट जो तैयारी कर रहा है, हेतु कह रहे हैं जेंडर सेंसिटिव प्रोग्राम फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन, एनकरेजिंग देयर पार्टिसिपेशन। ठीक है, तो यहाँ पर हम फोकस कर सकते हैं वुमेन, फोकस ऑन वुमेन एम्पावरमेंट, और वुमेन एम्पावरमेंट में हम एसएचजी लेड, सेल्फ हेल्प ग्रुप लेड, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम कर सकते हैं। ठीक है, अब लड़कियां ज्यादा आंसर लिखेंगी, मतलब आंसर देखते मुझे मालूम हो जाएगी लड़की है ये, बिकॉज वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रही है, नथिंग रॉन्ग इन दैट, दैट इज कंप्लीटली ओके। इज दैट क्लियर? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो गया, देन हाँ ठीक है, गुड गुड। तो ये आपने स्कीम हो गए, पॉवर्टी को डिफाइन किया, कुछ एग्जांपल्स दिए, फैक्ट डेटा दिया,
और फिर आपने क्वेश्चन को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, देन यू कंक्लूड द आंसर, 2 लाइन में खत्म कर दीजिए। poverty, these measures of poverty elevation will go a long way to attain India विकसित भारत by 2047 करके आपने क्लोज कर दिया, खत्म। कट टू कट लिखना है, समय नहीं उनके पास, ना हमारे पास ना उनके पास, 7-8 मिनट में लिखना है ये सारी बातों को। तो यानी पढ़ना है, रिवाइज करना है, फिर रिवाइज करना है और फिर लिखना है। The more you revise, the more you read, the better it gets, and the more you write, again it gets improved. कह सकते हैं, बट ठीक है, गवर्नमेंट, इट इज द गवर्नमेंट मॉडल। व्हाई आई शुड बी बॉदर्ड अबाउट बीजेपी मॉडल, गवर्नमेंट मॉडल? जब 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 कांग्रेस थी तो वो भारत निर्माण की बात करती थी। नहीं नहीं, ठीक है, आई एम जस्ट यूजिंग मे बी अ विजन ऑफ द गवर्नमेंट, whosoever is the government, and it is not कोई ऐसा बायस स्टेटमेंट नहीं है, वो एक बेसिक स्टेटमेंट है। वी वांट टू, by the time India is celebrating its 100th year of independence, भारत एक डेवलप कंट्री हो जाए, तो वो एक विजन डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट ने पुट किया है। तो आई डोंट थिंक सो दैट वुड बी नेगेटिव, ठीक है ना। हाँ, तरीकों में सवाल उठ सकता है, तो कहने का मतलब इफ यू लुक एट दीज वेज। अब ये अगला सवाल अगर आप देखेंगे तो इसका मैंने आपको आंसर दिया हुआ है, कैन लुक एट, दिस इज द क्वेश्चन। ये व्हाट इज द स्टेटस ऑफ डिजिटलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, एग्जामिन द प्रॉब्लम्स फेस्ड। इसका मैंने सोल्यूशन भेजा है ऑनलाइन स्टूडेंट्स, इसका मैंने पीडीएफ फॉर्म में दिया हुआ है। तो अगर आप देखोगे तो यहां पर ये मैंने एक मॉडल आंसर मैंने ही लिखा है, ठीक है। तो इस मॉडल आंसर को देखेंगे पहला तो, नाउ लेट्स सी दिस क्वेश्चन, व्हाई दिस क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड, ये सवाल पूछा क्यों गया। प्रिपरेशन में हर चीज का लॉजिक होता है, एक यूपीएससी कोई सवाल पूछ रहा है तो लॉजिक है। दिस ईयर मेंस में 80 क्वेश्चंस में मोर देन 25 क्वेश्चंस हमारे क्लास में डिस्कस किए हुए थे, मोर देन 25। उसमें से और भी बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो टेस्ट सीरीज के पार्ट थे, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। उसके अलावा जो जनरल क्वेश्चंस थे वो इन्हीं में कवर होते हैं। मेंस इज वन एरिया जहां पे अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो पेपर निकलेगा, पेपर निकलेगा। सिलेबस कवर किया है तो पूरा 90% पेपर आपको आता होगा, मोर देन 90% पेपर आपको आता होगा। आउट ऑफ 20 क्वेश्चन आपको 17-18 आते होंगे, 1 और 2 इधर उधर हो सकते हैं, स्पेशली वो साइंस एट या एनवायरमेंट में होता है। नॉर्मली GS1 GS2 में इतना नहीं आपको मिलेगा, हिस्ट्री में कई बार, आर्ट एंड कल्चर में कुछ रह गया, बट मोरलेस यू विल बी एबल टू सॉल्व द पेपर। तो ये सवाल क्यों है, बिकॉज दिस इज अ पार्ट ऑफ स्टैटिक सिलेबस जनरल स्टडीज। और अगर आप देखोगे तो करंट स्टेटस की डिमांड क्या है कि भाई आपका भारत का डिजिटलाइजेशन का करंट स्टेटस क्या है, दे वांट टू आस्क दिस, ठीक है। तो अब आपको इसमें यू हैव टू एग्जामिन, क्या लिखा है, एग्जामिन। एग्जामिन मतलब आपको थोड़ा इन्वेस्टिगेट करना है, एग्जामिन करना है, थोड़ा डेप्थ में जाना है, इन टर्म्स ऑफ लुक इनटू इट, गिव इनपुट और मेक इजी टू अंडरस्टैंड। अब आपको लिख के समझाना है। अब कैसे स्टार्ट करोगे, इंट्रोडक्शन, आप डिजिटलाइजेशन के स्टेटस से स्टार्ट करो, अगर फैक्ट डेटा है वेल एंड गुड, देन कुछ फैक्ट डेटा लेके आओ डिजिटल इंडिया का, इन द एंड सजेस्ट इंप्रूवमेंट, कंक्लूड द आंसर बाय गिविंग इंपॉर्टेंस टू व्हाई इंडियन इकोनॉमी जो है, हमको 5 ट्रिलियन भी अचीव करना है 2 साल में, एंड विकसित भारत भी अटेन करना है। यू कैन गिव सम अदर आल्सो, अटेन द न्यू इंडिया, आई वांट टू अटेन अ न्यू इंडिया व्हिच इज मोर डेवलप्ड। तो ये सारे स्लोगन क्या है, नॉर्मल स्लोगन से आप इनको ला सकते हो, ठीक है। अगर आपको विकसित भारत से प्रॉब्लम है तो आप लिख दो क्रिएट अ न्यू इंडिया व्हिच इज मोर डेवलप्ड और व्हिच इज डेवलप्ड इन नेचर, ठीक है ना। ठीक है चंदू, डू आई मेक सेंस? देन डिजिटलाइजेशन, अब यहाँ क्या है, डिजिटलाइजेशन आपने कैसे स्टार्ट किया, has become a defining force in an economy, reshaping industries, transforming governance, revolutionizing the way businesses and individuals operate. Over the past decade, India has witnessed a remarkable surge in digital adoption, driven by initiatives like Digital India and tech-savvy population. तो ये हमने इंट्रोड्यूस किया, एक आइडियल इंट्रोडक्शन है, इतना अच्छा हम लिख नहीं पाएंगे, बट अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो गुड इनफ लिख लेंगे, ठीक है। देन अब डेटा दे दो, इंडिया में 80 करोड़ लोग इंटरनेट यूज करते हैं। ई गवर्नेंस, गवर्नमेंट के ये इनिशिएटिव्स है जो हम भी काफी यूज कर रहे हैं, डिजिटल इंडिया, डिजी लॉकर, ई कॉमर्स इंडिया का 175 बिलियन पहुंचने वाला है। फाइनेंशियल इंक्लूजन, 50 करोड़ से ज्यादा जनधन अकाउंट है जो टेक्नोलॉजी ड्रिवन है। स्टार्टअप इकोसिस्टम में 100+ यूनिकॉर्न्स है, ठीक है। तो ये आपने एग्जांपल दे दिया। और प्रॉब्लम्स क्या है, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स? प्रॉब्लम सिंपल है, डिजिटल डिवाइड है, सबको एक्सेस नहीं है, साइबर इश्यूज आते हैं, रोज सुन रहे हो साइबर फ्रॉड हो रहा है, डिजिटल अरेस्ट हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। रेगुलेटरी बॉटलनेक्स है, गवर्नमेंट आज भी डिजिटल स्ट्रीमलाइनिंग में परफेक्ट चीजें नहीं हो पाई हैं। डेटा प्राइवेसी का भी इशू है, आपका डेटा प्राइवेट को कोई यूज न कर पाए। देन लिटरेसी,
You need to educate people to adopt technology. हम आप शायद फिर भी थोड़ा इजी होगा, बट कोई 70 साल का है, 75 साल का है, 60 साल का है, 50 साल का है, उनके लिए डिजिटल अडॉप्शन इज वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज उनको पता नहीं है, एंड दे फाइंड इट डिफिकल्ट. लर्निंग इज इजी, बट न्यू चीज लर्न करना, अब रिटायरमेंट आ रहा है, क्यों ले सीखे नई चीज, राइट? देन क्या करेंगे, कैसे इंप्रूव करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करिए, साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेंथन करिए, डेटा प्रोटेक्शन लॉज लेके आइए, स्किल डेवलप करिए, and if you are able to do that, India will be able to attain the, maybe what we want to attain through this. More than sufficient. इसके बाद टाइम ही नहीं मिलेगा बेटा. अब ये 150 वर्ड का आंसर है, समय नहीं है, जो पूछा गया वो जवाब देना है. ये तो इतना भी बहुत ज्यादा है, इतना भी नहीं लिख पाएंगे बेटा. आप देखो, लिख के देखने को इसको, इतना भी लिखना बहुत मुश्किल है. कट टू कट लिखना है, फैक्ट, डेटा. हाँ, ये जरूर है कि मोर यू राइट, धीरे धीरे प्रैक्टिस से चीजें इंप्रूव हो जाएगी. ओके, सो दीज आर थिंग्स दैट आई वांट टू टेल यू ऑल, दैट एज अ स्टूडेंट आपकी जो आंसर राइटिंग की स्किल होनी चाहिए बहुत क्लियर एंड बेसिक होनी चाहिए. यू हैव टू कम विद लॉट ऑफ प्रैक्टिस. ठीक है, अब यहां तक अभी एट द सेम पेज कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? तो हमने डिस्कस किया व्हाई आंसर राइटिंग इज इंपॉर्टेंट, व्हाई यूपीएससी इज लुकिंग एट योर राइटिंग असेसमेंट टेस्ट. द सेकंड इज हाउ डू आई स्टार्ट अ बेसिक आंसर. एक दो आंसर हमने देखा, उसका एग्जांपल देखा कि आंसर लिखा कैसे जाता है. नाउ देयर आर टू पार्ट्स ऑफ द सेशन जो भी बचा हुआ है. द फर्स्ट पार्ट इज दैट हाउ टू आई इंप्रूव माय, व्हाट आर द पिलर्स ऑफ गुड आंसर. अच्छे आंसर को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? आप अच्छे स्टूडेंट हो कैसे मालूम होगा? हाउ डू, व्हाट आर द पिलर्स ऑफ एग्जामिनिंग अ स्टूडेंट. एक गुड स्टूडेंट का कैसे एग्जामिन करोगे? अच्छा स्टूडेंट है, डिसिप्लिन्ड है, ठीक है. ऑनलाइन स्टूडेंट टेल मी, कितने लोग अपने आप को गुड स्टूडेंट समझते हैं? छोड़ दो, ये सवाल का जवाब मत दो. मुझे ये बताओ कि हाउ मेनी, व्हाट आर द पिलर्स ऑफ अ गुड, हाउ डू आई जज अ स्टूडेंट इज गुड? इन्होंने कहा डिसिप्लिन इज द फर्स्ट पिलर, ठीक है, और कंसिस्टेंट है, और परसिस्टेंट है, ठीक है. कंसिस्टेंट एंड परसिस्टेंट इज ऑलमोस्ट सिमिलर, ठीक है. और आउटकम ड्रिवन है, आउटकम भी दिख रहा है, नंबर भी आ रहे हैं, मार्क्स भी आ रहे हैं, ठीक है, ठीक है. आउटकम इज ऑल्सो कमिंग. और क्या हो सकता है? रिजल्ट नहीं आ रहे तो ही और शी इज इम्प्रोवाइजिंग, एनालाइजिंग, उसको इंप्रूव करना है, इनोवेट कर रहा है, सोच रहा है, एंड इज एबल टू टेक इन अ राइट वे. उसका माइंडसेट स्ट्रांग है, ही और शी इज हैज अ गुड हैबिट. तो यही सब उसी तरीके से अगर हम एक गुड आंसर को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो देयर आर 5 पिलर्स ऑफ अ गुड आंसर. 5 पिलर गुड आंसर के होंगे. द फर्स्ट पिलर ऑफ अ गुड आंसर इज डिटेल एंड बाउंड्रीज. आंसर की बाउंड्री पहले तय करनी होगी. सवाल क्या पूछा जा रहा है? कहानी नहीं लिखनी है, नॉवल नहीं लिखना है, उस पर 150 वर्ड का आंसर राइटिंग लिखना है. दैट मीन पहली बाउंड्री डिफाइन कर लो. ओके, राइट एग्जैक्टली व्हाट इज नीडेड. नाम पूछा, नाम बताओ. ठीक है, नथिंग मोर नथिंग लेस. ये पहला पिलर है. द सेकंड पिलर ऑफ अ गुड आंसर इज रेशियो एंड इक्विलिब्रियम. okay, in terms of subparts, in terms of dimensions. मैंने कहा कि discuss the positive as well as negative aspects of Indian economy. Let's say, तो वो कह रहा है भाई पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स इंडियन इकोनॉमी का, दोनों का रेशियो क्या होना है? 50-50. 50% पॉजिटिव, 50% नेगेटिव. अगर आपको 3 डायमेंशन लिखना है, तीनों में बराबर वेटेज देना पड़ेगा. अगर अगर एग्जाम के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर 3 पार्ट आपको आंसर करने, तो तीनों पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3, तीनों पार्ट में आपको इक्वल देना है. या जो सवाल पूछ रहा है, जो पार्ट इंडिया के ज्यादा रेलेवेंट है उस पार्ट पे शायद ज्यादा फोकस कर सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है. तो रेशियो इक्विलिब्रियम मींस आपके आंसर में किस पार्ट का कितना बैलेंस होना चाहिए, कितना प्रोपोर्शन होना चाहिए, वो भी इंपॉर्टेंट है. कई बार ऐसा होता है क्वेश्चन के 2 पार्ट है, आपने फर्स्ट पार्ट को इतना लिख दिया कि सेकंड पार्ट की जगह ही नहीं बची.
तो आपको आपको कह रहे हैं अच्छा तो लिख के आए, नंबर नहीं मिला, बिकॉज यू रिटन हाफ द आंसर। तो ये सब चीजों पे आपको एक कांस्टेंट एफर्ट करना होगा, यू हैव टू इवैल्यूएट दीज थिंग्स, बिकॉज व्हेन यू आर डूइंग दैट यू विल अंडरस्टैंड। तो रेशियो इक्विलिब्रियम ऐसा हो गया। तो जब भी आंसर लिखिए तो देखिए उसे कितने पार्ट्स हैं। इफ आंसर इज सिंपल टू द पॉइंट, ठीक है भाई, तो विल हैव टू अंडरस्टैंड दिस। जब हमने कहा कि भाई पावर्टी सूटेबल, पावर्टी एलिवेशन मेजर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में पावर्टी, तो 50% आप इधर जाओगे, 50% इधर जाओगे। आपने पावर्टी इंडियन कॉन्टेक्स्ट में समझाया, और दूसरे पार्ट में, पार्ट 1 ऑफ द क्वेश्चन इज दैट, पार्ट 2 इज हाउ डू आई इंप्रूव पावर्टी। दो पार्ट हो गए। फिर हो सकता है कई बार क्वेश्चंस आते हैं जहां पे आप कंपैरिजन करना है, ए इज कंपेयर्ड विद बी और बी इज कंपेयर्ड विद सी, तो वहां पे दोनों को बराबर रखना नहीं रखना है, ये क्वेश्चन में आपको जज करना पड़ेगा। So when you're writing the answer, be very clear what are the objective of the answer. Example, question की डिमांड को समझो बेटा, because if you're not able to understand the demand of the question, चीजें वर्क नहीं करेंगी। तो यहाँ पे आपको डिमांड समझ में आता है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, यहाँ पर उसके डिमांड को फर्दर हम डिस्क्राइब करते हैं। The third pillar of a good answer is objectivity. आपके आंसर ऑब्जेक्टिव होने चाहिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव? ज्यादा डिटेलिंग नहीं होनी चाहिए। अच्छा, ऑथेंटिक, ऑथेंटिसिटी और ऑब्जेक्टिविटी। तो ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है, मुझे लगता है कि भारत में गरीबी काफी कम हुई है। ये एक सब्जेक्टिव स्टेटमेंट है, ये आपको लगता है, इनको कुछ और लगता है। क्या बात कर रहे हैं सर, अभी तो कल रेलवे स्टेशन से निकल के आया था, इतनी गरीबी दिख रही थी। इनका भी जो है, इन्होंने कहा नहीं सर, मुझे लगता है कि भारत में गरीबी तो कम हुई है, लेकिन अभी बहुत, स्टिल अ लॉन्ग वे हैज टू गो। नाउ दीज आर ऑब्जेक्टिव, दीज आर सब्जेक्टिव स्टेटमेंट। आपका अपना परसेप्शन है, सब्जेक्टिव परसेप्शन, ऑब्जेक्टिव रियलिटी। जो आपको दिख रहा है उसका अपना एक परसेप्शन है, मैं कह रहा हूं उसको ऑब्जेक्टिव बनाओ। इंडियन, अब से मुझे लगता है, या आई फील दैट पावर्टी हैज डिक्लाइन इन लास्ट 30 years. As per the data, the poverty, as per World Bank data, poverty 1990 से अभी तक हाफ हो चुकी है। तो आपने इसको ऑब्जेक्टिव बना दिया, आपने उसको प्रूव कर दिया, इट इज फैक्ट बेस्ड। तो सवाल को उठने की सवाल नहीं, कोई सवाल ही नहीं है उस पर, दैट इज राइट, व्हाट एवर रिटन इज राइट। ओके, एंड देयर आप यहाँ पे यूज करोगे फैक्ट, डेटा, आप यूज करोगे एग्जाम्पल्स। भारत गरीबी उन्मूलन के लिए, गवर्नमेंट इज वर्किंग टू इंप्रूव पावर्टी, एलिवेट पावर्टी इन मल्टीपल वेज। हमने कहा हमें तो नहीं लगता है, मैं कहा भी बताता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 गवर्नमेंट की स्कीम बता दी, आपने स्टेटमेंट को ऑब्जेक्टिव कर दिया। आप उसमें आप उसके एफिकेसी से या फिर आउटकम से यू माइट नॉट बी अग्रीइंग टू दैट फैक्ट, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। तो आपके आंसर ऑब्जेक्टिव होने चाहिए, एंड इवन जितनी ऑब्जेक्टिविटी लाओगे उतना आंसर आपका, जैसे इन्होंने कहा, शांति ने एक बात कही, सर जो चेक कर रहे हैं उनका अपना एक सब्जेक्टिव वो होगा। अगर उनको लगता है गरीबी भारत में कम नहीं हुई, लेकिन मैंने एक फैक्ट दिया वर्ल्ड बैंक का जिसने बताया कि गरीबी कम हुई है, तो वो मेरी बात को काउंटर नहीं कर सकते हैं। एम आई राइट? बिकॉज इट्स फैक्ट बेस्ड, मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं। आई एम जस्ट राइटिंग एग्जैक्टली द फैक्ट एज पर गवर्नमेंट डेटा, फॉरगेट गवर्नमेंट डेटा, इंटरनेशनल डेटा। सो दैट पर्सन हैज नो राइट, वो आपके नंबर कट नहीं कर सकते हैं, दैट इज द रियलिटी। तो दैट इज वेयर मेरा फोकस ये होना चाहिए कि मुझे आंसर्स को ऑब्जेक्टिव बनाना है, फैक्ट, डेटा, एग्जाम्पल, डायग्राम, कोट, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, बहुत सारी चीजों को हम जब करेंगे तो आपको समझ में आएगा। इज दैट क्लियर? तो ये 3 पिलर हो गए। अब चौथा पिलर क्या हो गया? द फोर्थ पिलर इज लैंग्वेज एंड फ्लो इन द आंसर। कि आपके आंसर का लैंग्वेज कैसा है, फ्लो कैसा है। लैंग्वेज एंड फ्लो कुड बी इन टर्म्स ऑफ, it should be simple, it should have a right grammar ठीक होना चाहिए, it should be interconnection सेंटेंस का अच्छा होना चाहिए, यानी एक पैराग्राफ दूसरे पैराग्राफ से लिंक होना चाहिए, नहीं कि इधर एक लेफ्ट जा रहा है दूसरा राइट जा रहा है, इंटरकनेक्शन है ही नहीं, फ्लो ही नहीं है।
अब मैंने कहानी सुनाई तो स्टेप बाय स्टेप चीजें हो रही, तो आपको पता चल रहा है इंटर कनेक्शन है, देयर इज अ फ्लो। आप रीड करते हो तो आपको समझ में आता है, अच्छा सेकंड, फर्स्ट के बाद सेकंड आ रहा है, सेकंड के बाद थर्ड आ रहा है, एंड इट इज लॉजिकल आल्सो। सो लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ आइडियाज। कभी आपने कोई कहानी पढ़ी है, क्या मजा आ गया, पिक्चर देखी है, स्क्रीन प्ले होता है, फ्लो है पिक्चर का, एक पिक्चर का फ्लो है स्क्रीन प्ले। अभी नहीं कुछ देख रहे तो गाना आ गया, ये कहां से आया? कभी ऐसा नहीं हुआ है? आप कोई पिक्चर देख रहे हो सडनली गाना आ गया, ये कहां से आया? यू फेल्ट लाइक अरे आउट द ब्लू आ गया ये तो। अभी लड़ाई चल रही तब तक पिक्चर खत्म, अरे तो बहुत जल्दी अब्रप्ट एंड हो गया। तो सिमिलरली आपके आंसर में भी एक लॉजिकल कोहेरेंस दिखना चाहिए, एक लॉजिकल फ्लो ऑफ अरेंजमेंट ऑफ आइडिया दिखना चाहिए, ग्रामर ठीक होना चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। स्पेलिंग मिस्टेक बहुत जरूरी है। स्पेलिंग मिस्टेक क्यों होती है? बिकॉज आपने प्रैक्टिस नहीं किया है, और ये कॉमन प्रॉब्लम्स होती है बेटा। ऑब्वियसली मैं एग्जामिनर हूं और आप स्पेलिंग बार बार गलत कर रहे हो तो मुझे थोड़ा ऑफ नहीं लगेगा? हिंदी में लिख रहे हो और वहां पे ग्रामर सही नहीं है तो ऑफ नहीं लगेगा? इट्स वेरी लॉजिकल। कोर्स आई एम जजिंग यू आंसर बाय योर कंटेंट। कंटेंट क्या है वो मेरा प्राइमरी है, आपकी सोच क्या है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, बट ये चीजें भी मैटर करती हैं। सो इफ यू लुक एट दीज 4 पैरामीटर्स, ये चारों पैरामीटर अगर आप देखोगे, ये आपका लिंग्विस्टिक पैरामीटर है। ठीक है, लिंग्विस्टिक, these are linguistic parameters, यानी राइटिंग स्किल से जुड़ा हुआ है। और लास्ट आता है प्रेजेंटेशन, दिस नॉन लिंग्विस्टिक। प्रेजेंटेशन कैसे लिखा, सेंटेंस कैसे लिखा, पैराग्राफ कैसे लिखा, डायग्राम कैसा बनाया, स्पेस कैसा है, लुक एंड फील। खाना अच्छा बनाया, प्रेजेंटेशन ऐसा किया कि खाने से पहले खुशी आ गई, एग्जामिनर का काम आसान कर दिया, डायग्राम बनाया, हर की पॉइंट को अंडरलाइन कर दिया। कैसे करोगे? गुड स्ट्रक्चर, आपने स्ट्रक्चर अच्छा बनाया, पहले इंट्रोडक्शन, देन बॉडी, देन कंक्लूजन। द सेकंड वुड बी इन अंडरलाइनिंग की पॉइंट, ठीक है, या कीवर्ड्स हो सकते हैं, और हेडिंग, सब हेडिंग। हाँ हाँ कर सकते हैं बिल्कुल, टाइम नहीं रहता मतलब। हेडिंग, सब हेडिंग हो गया, ठीक है। उसके बाद और क्या हो सकता है? यूज ऑफ इनोवेटिव टूल्स। इनोवेटिव टूल क्या हो सकते हैं? मैप बना दिया आपने, फ्लो चार्ट बना दिया, बात वही कह रहे हैं। हाँ, मंदाज अलग है। तो जब आप ये करते हो उसका फायदा क्या होता है? एज एन एग्जामिनर व्हाट यू फील इज दैट मेरा काम आपने आसान कर दिया। मुझे नॉर्मली जो आंसर को 2 मिनट लग रहा था, आपने दो मिनट लग रहा चेक करने में, आपने मुझे 1.5 मिनट में चेक करने दिया, बिकॉज यू मेड इट सो विजिबल। देखा, अरे तो सब पूरा दिख रहा है, मुझे कीवर्ड ढूंढना ही नहीं है। कोई एक दूसरे बंदे ने आंसर लिखा है एंड ही हैज रिटन ऑलमोस्ट द सेम कंटेंट, बट साफ सफाई से नहीं लिखा है, पैराग्राफ स्ट्रक्चरिंग ठीक से नहीं है, सारे पॉइंट्स हैं लेकिन मुझे काउंट करना पड़ा 1 2 3, अच्छा अच्छा, अरे ये भी पॉइंट मिस हो गया। वहां उसने इतना बड़ा बड़ा पॉइंट 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट 4 सब हेडलाइन हेडलाइन, सब हेडिंग, की पॉइंट्स, कीवर्ड, सब कुछ अंडरलाइन कर रखा है, डायग्राम भी बना रखा है। मैंने कहा अरे ये तो मुझे चेक करने में मेहनत ही नहीं लग रही है। तो मेरा जो फर्स्ट इंप्रेशन है, इट इज वेरी 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 प्रो टू यू। आपका मूड खराब है और सडनली आपके सामने कोई अच्छा पेपर आ जाएगा, मूड सही हो जाता है। मेरे सामने कोई अच्छा, मैं तुरंत लाइट अप हो जाता हूँ, अरे क्या बात है, बिकॉज आई एम लुकिंग फॉर सच आंसर्स। एग्जामिनर will judge you based on what you write and what you present. प्रेजेंटेशन से अच्छा हो, आपके 10 नंबर के क्वेश्चन में आपके आधे नंबर बढ़ जाएंगे, ज्यादा नहीं, बट 20 क्वेश्चन में अगर हर क्वेश्चन में प्रेजेंटेशन में आपको आधे नंबर एक्स्ट्रा मिलते हैं, दैट मीन्स यू गेट 10 मार्क्स। और 7 पेपर में इंटू 10 कितना हो जाएगा? 70। आप लिस्ट से बाहर
या आईएएस बन जाओगे, फिर प्रेजेंटेशन से। बट प्रेजेंटेशन के लिए पहले कंटेंट अच्छा होना चाहिए, ये भी जरूरी है। प्रेजेंटेशन इज प्रोबेबली द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, बट दैट विल कम इन द एंड। तो एज अ पिलर, एज अ मेंटर, आई वुड ऑलवेज एडवाइस कि आप इन सब चीजों पे काम करिए, एंड यू हैव टू मेक एन कॉन्शियस एफर्ट टू मेक दिस हैपन, बिकॉज हमारी आदत नहीं है प्रेजेंटेशन में पुट करना, फ्लो लिखना, डायग्राम लिखना, एग्जाम्पल लिखना, हमारी आदत का पार्ट नहीं। सर हिंदी लैंग्वेज में भी प्रॉब्लम आती है क्या, अभिनव पूछ रहे हैं। अभिनव बेटा, हिंदी लैंग्वेज मतलब किस सेंस में? हिंदी में लैंग्वेज, अगर आपका लैंग्वेज ग्रामर खराब है तो नंबर कटेंगे, बिल्कुल कटेंगे। अब मैं बोलता हूँ पानी खाता है, तो कैसा लगेगा? बंगाल में जाएंगे तो बोलेंगे पानी खाता है, मान लीजिए। क्या है, पानी खाता नहीं है, पानी पीता है। कह रहा नहीं मैं तो खाता है। अरे तुम खाता है, तुम जाओ बाहर, तुमको खाने वाला नहीं, को पीने वाला चाहिए पानी। सो ऑटोमेटिकली आपका जजमेंट, फिर वो नंबर जो मार्क्स कट कट कर लेगा। अब हिंदी जो अच्छे से जानता है या पढ़ाता है ना, दैट पर्सन विल फील वेरी बैड एंड ऑफेंडेड। एम आई राइट? उनको क्या मतलब है यार, कह रहे यार क्या आईएएस बनोगे, तुमको ग्रामर का बेसिक समझ नहीं है। एम आई राइट? सर प्योर हिंदी में लिखना लिखना होता है क्या? नहीं नहीं, प्योर हिंदी, अगर हिंदी आपका लैंग्वेज है, देन यू राइट इन हिंदी। ओके, सो दैट इज हाउ विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो ये हमारे प्रिपरेशन के बेसिक पिलर्स हैं। मैंने ये पांचों पिलर्स को डिस्कस किया, एंड आई वांट यू ऑल टू इनकलकेट दीज थिंग्स इन द आंसर, बिकॉज जब आप इनको करोगे तो आपकी प्रिपरेशन जो है स्ट्रीमलाइन होगी। Now I want to show some toppers copy, मैं एक दो टॉपर्स की कॉपी दिखाता हूँ to tell you कि वो लोग कैसा लिखते हैं, and let's see वो pillars of answer जो हमने डिस्कस किए वो फॉलो हो रहे कि नहीं हो रहे। ओके, तो ये एक टॉपर कॉपी है, इस क्लासरूम स्टूडेंट। तो उसने लिखा है इंट्रोडक्शन, देखिए फिर क्या है इसमें क्वेश्चन लिखा है। इफ यू लुक एट द क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट फोर्सेज इन कॉन्ट्रडिक्शन टू द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग। तो यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चंस को मार्केट फोर्सेज, कॉन्ट्रडिक्शंस, राइट ए ओपिनियन विद लॉजिकल रीजनिंग। इन क्वेश्चंस के जो पार्ट्स है वो दिखना है। अगर आप देख रहे हैं इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया, देन एक सब हेडलाइन दिया जिसमें कॉन्ट्रडिक्शन की हम लोग बात कर रहे हैं, उसके मैंने 5-6 पॉइंट दिए। बट यहाँ हमने चेंज किया कि नहीं भाई ऐसा नहीं है, ठीक है, प्लानिंग से सारी चीजें अच्छी हो सकती है। फिर 1 2 3 4 5 6 में पॉइंट दिए, फिर डेटा एग्जांपल, फैक्ट, डेटा दिया है, कंक्लूजन लिखा है। तो अगर आप देखोगे तो फर्स्ट पिलर डिटेल एंड बाउंड्री, एग्जैक्टली जो सवाल पूछा है वो आंसर हो रहा है, उसके बियॉन्ड हम नहीं गए हैं। सेकंड पिलर इज रेशियो इक्विलिब्रियम, क्वेश्चन के दो पार्ट है, दोनों को बराबर वेटेज दिया है। द थर्ड पिलर इज ऑब्जेक्टिविटी। हमने डेटा, देखो यहाँ फैक्ट है, डेटा है, एज पर नीति आयोग गवर्नमेंट ने इतना एक्सेलरेट किया है डेटा, तो ऑब्जेक्टिविटी आपने लाया। यहाँ पे भी गवर्नमेंट स्कीम्स आपने दे रखा है, यू नो इफ यू लुक एट इट, यहाँ पे गवर्नमेंट की एग्जांपल, मिनिमम सपोर्ट प्राइस एग्जांपल गवर्नमेंट स्कीम का दे रखा है। तो यू हैव एग्जांपल्स ऑफ जहाँ पर हम ऑब्जेक्टिविटी लेके आ रहे हैं, हम रैंडम बातें नहीं कर रहे हैं। ओके, देन सिमिलरली यहाँ देखो गवर्नमेंट का डेटा है, गवर्नमेंट के एग्जाम्पल्स है। देन फोर्थ पिलर इज ग्रामर, पढ़ के देख लो, फ्लुएंटली लिखा है, ग्रामर अच्छी है, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है, लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ आइडियाज है, और प्रेजेंटेशन भी ठीक ठाक है, राइट। बट कितने मिले हैं? 12.5 में 5.5। मेरे हिसाब से इसमें और भी कुछ हो सकता है, इट कैन बी बेटर्ड। कंक्लूजन बहुत बड़ा है, छोटा हो सकता है। इंट्रोडक्शन कंक्लूजन बड़ा बड़ा है, टू द पॉइंट और लिखना चाहिए, तो ज्यादा लिखा है मेरे हिसाब से। इंपॉर्टेंट देखिए ना, यहाँ पे पहला देखो की पॉइंट पर अंडरलाइन कर रखा है, देखो ना, अंडरलाइन किया ना की पॉइंट पे। इसमें मैं बेटर वर्ड यूज कर सकता हूँ ना, दिस विल कम थ्रू प्रैक्टिस। तो आई एम जस्ट टेलिंग यू दैट एज एस्पिरेंट बेटा, आपको एक कांस्टेंट एफर्ट करना होगा, एंड दैट कांस्टेंट एफर्ट को आप इंप्रूव करोगे विद टाइम, तो आंसर राइटिंग इंप्रूव होगा। नाउ शी इज एन आईपीएस ऑफिसर राइट नाउ, थोड़ा और बेटर होता, 15 नंबर और आते आंसर में, तो आईएएस हो जाती। हाँ,
क्वेश्चन क्या था, व्हाट एग्जैक्टली इज द क्वेश्चन? तो अब अगर हम दिल्ली चलते हैं तो और मुगल के बारे में करें तो हम लोग ऑलमोस्ट 400-500 साल का एरा की बात कर रहे हैं. सो इट इज नॉट पॉसिबल टू राइट एनीथिंग एंड एवरीथिंग. सो वी विल गिव एग्जाम्पल. मान लो हमने कह दिया, तो इसमें मैं यूपीएससी में हम लोग रूल फॉलो करते हैं 753. 7 में हम लिखेंगे, मिनिमम 5 पॉइंट लिखेंगे. तो 5 एग्जाम्पल आपने दे दिए, 5 पॉइंट लिख दिए. एंड 3 इज 3 डायमेंशन में आपको लिखना होगा. तो आपने आर्किटेक्चर का रेलेवेंस लिख दिया कि ये सोशल, इसका सोशल रेलेवेंस है, इसका कल्चरल रेलेवेंस है, ऐसे आपने लिख दिया. तो आपको बेटा 4-5 एग्जांपल लिखने हैं. 3 आपने इसके दे दिए, 3 इसके दे दिए, दैट्स ऑल. बिकॉज 7.5-8 मिनट में यू कांट राइट एनीथिंग एंड एवरीथिंग. बट होराइजन में जो की एग्जांपल्स हैं आर्किटेक्चर के, आपने जो मेजर एग्जांपल्स हैं, जो फर्स्ट मोमेंट यू से अबाउट मुगल आर्किटेक्चर, तो 3-4 की पॉइंट जो आते हैं या की एग्जांपल्स आते हैं, उनको आप पुट करोगे. सो दैट इज व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू. इट इज नॉट पॉसिबल. मुझे की पॉइंट बताने हैं, ठीक है? तो दैट इज हाउ इट हैज टू बी अंडरस्टूड. तो कोई भी एस्पिरेंट जो सेलेक्ट हो रहा है ना बेटा, उन्होंने इस तरह से, आप डायग्राम एग्जांपल दे सकते हो. तो ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, यू कैन मेक अ स्मॉल फ्लो चार्ट लाइक दिस, राइट? तो इस तरह से आप लिखोगे तो नंबर मिलेंगे बेटा. कोई रोक नहीं सकता है, कोई काट नहीं सकता. और ये आंसर बेटा टाइम बाउंड लिखा गया है, 7 मिनट में 8 मिनट में लिखा गया है. आई एम नॉट सेइंग दैट दिस इज द परफेक्ट आंसर, बट इन आइडियल सिचुएशन आप अच्छा आंसर लिख सकते हो. बट कंस्ट्रेंट सिचुएशन में आप बहुत अच्छा आंसर लिख पाओगे. मे बी दिस इज क्लोज टू आइडियल, आई वुड से दैट. सो एनी एस्पिरेंट जो मेहनत करेगा, दिस विल कम विद टाइम एंड एफर्ट. प्रैक्टिस, रिवीजन, प्रैक्टिस, रिवीजन, प्रैक्टिस. द मोर यू राइट द बेटर इट गेट्स. और एंड जाते जाते आपको इंप्रूव करना है. तो दैट इज व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू. तो आप जो भी एस्पिरेंट तैयारी कर रहे हैं, अगर इन बातों का ध्यान रखेंगे, they will understand that answer writing part is something that you can make a real effort. और आउटकम बहुत क्लोज रहेगा, क्वांटिफिकेबल रहेगा. बट इट विल रिक्वायर 6 to 9 months ऑफ मिनिमम एफर्ट. अगर आप कंसिस्टेंटली 1.5 घंटा हर वीक कवर कर एफर्ट करते हो, तो 6 से 9 महीने में एफर्ट आएगा. 1.5 साल भी लग सकता है. प्रिपरेशन की जर्नी 2-2.5 साल की होती है मिनिमम. 2 से 3 साल की मिनिमम जर्नी होती है. तो आंसर राइटिंग आपको स्टार्टिंग से ही करना पड़ेगा. तो दैट इज अबाउट